Results of abiding in Jesus. What kind of results we will get when we abide in Christ? मसीह में बने रहने के परिणाम क्या होते हैं? जब हम मसीह में बने होते हैं तो हमें कौन से परिणाम मिलते हैं? What are the things we will receive when I abide in Christ, when you abide in Christ? जब मैं मसीह में बने रहता हूं, जब आप मसीह में बने रहते हैं तो हमें कौन से परिणाम मिलते हैं? If you don't know that, you will not abide in Christ. अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो आप मसीह यीशु में नहीं बने You रहेंगे। will not know the value why you should abide in Christ. आप इस मूल्य को नहीं जानेंगे कि आपको क्यों मसीह यीशु में बने रहना है। So Jesus himself, our Lord, said, if you abide in me, what all things will happen to all of us, very clearly described. John chapter 15 verse 1 to 8. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से 8 में यीशु ने हमें स्पष्ट बताया है कि यदि हम मसीह यीशु में बने रहते हैं तो हमारे साथ में क्या होगा। John chapter 15 verse 7. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7। If you abide in me, यदि तुम मुझ में बने and my रहो words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना you रहे, shall ask what you will, and it shall be done unto you. तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो It will be जाएगा। done unto you when you abide in Christ. जब आप मसीह यीशु में बने रहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। So first one, तो पहली बात है, when I abide in Christ, what will happen to me? जब मैं मसीह यीशु में बने रहता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? I will bear much fruit. मैं बहुत ही फलवंत हो This जाऊंगा। is the desire of God. God wants to have more fruit. ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो जाएं, Not only in spiritual life, केवल आत्मिक जीवन में ही नहीं, financially. आर्थिक रीति से You should bear more fruit. आप ज्यादा फलवंत होंगे। You should be fruitful in your business, आप अपने व्यापार में फलवंत होंगे, in your studies. अपनी पढ़ाई में। All students, listen to this. सभी विद्यार्थियों गौर से सुनिए। God wants you to have a good success in your studies. परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता पाए। Be fruitful in your studies. अपनी पढ़ाई में आप फलवंत हो जाएं। Not only that, केवल इतना ही नहीं, daily life, प्रतिदिन के जीवन में every day you should have fruit. हर एक दिन आपको फलवंत होना We है। can be fruitful when we abide in Christ. जब हम मसीह यीशु में बने रहते हैं तो हम फलवंत हो सकते हैं। The second thing, when you abide in Christ, what is happening? Note it down. दूसरी बात, जब आप मसीह में बने रहते हैं तो क्या होता है, जरा गौर कीजिए। We'll have power in prayer. तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ होगी। If anybody is not praying well, he is not abiding in Christ. अगर कोई अच्छे से प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो मसीह यीशु में नहीं है। Before start a work, you pray. After finishing your work, you pray. Every time pray, 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 pray. Prayer brings victory. Prayer brings goodness. Prayer brings peace. Prayer brings joy. Prayer brings happiness. Prayer brings fruitfulness. So continue praying. Whenever you get struggle, you pray. When you are happy, pray. When you are troubled, pray. When you are always good, pray. When you get prosperity, pray. When you are depressed, pray. When you are disappointed, pray. When you are successful, pray. When you are prosper, pray. Every time pray. हमेशा प्रार्थना करते चली जाइए। रात्रि की डिनर तपस्या కొడతాం। निराशा में होते हैं प्रार्थना कीजिए, संपन्नता में होते हैं प्रार्थना कीजिए, हमेशा प्रार्थना करते चले जाइए। इफिसियों 6, 18 और 19, आत्मा में प्रार्थना करो। यहूदा अध्याय 1 वचन 20 से 23 कहता है, आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। So plug into the power of prayer. When you plug in, you will get power. तो आप प्रार्थना की सामर्थ्य में जुड़ जाइए। जब आप उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो सामर्थ्य पाएंगे। Ephesians 3:20. इफिसियों अध्याय 3 वचन Ephesians 20, 5:17. इफिसियों 5:17 And 1 John chapter 5 verse 14 and 15. और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 प्रार्थना के बारे में कहता है। Ephesians 1:19. इफिसियों अध्याय 1 वचन 19, All apostles prayed. सभी प्रेरित प्रार्थना करने The early लगे। church prayed. सारी कलीसिया प्रार्थना कर Young रही people, थी। teenagers prayed. सभी नौजवान प्रार्थना कर रहे थे। Let our attitude become a prayer life. Prayer life should be there with us. हमारी मनोदशा तो हमेशा प्रार्थना करने वाली मनोदशा होनी चाहिए। The third one, when you are in Christ, when you abide in Christ, the fullness of joy you will get. Always you will be joyful. तीसरी बात, जब आप मसीह यीशु में बने होते हैं तो आप आनंद की भरपूरी पाते हैं, आप आनंद से भरे होते हैं। John 15:11 says, you should be joyful always. Philippians 4:4-8, joy, rejoice in the Lord. Nehemiah chapter 8 verse 9 and 10, rejoice in the Lord. यूहन्ना अध्याय 15-11, फिलिपियो 4:4 से 8, नेहमिया 8 वचन 9 और वचन 10, ये कहता है कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। Psalms 43 verse 4, rejoice in God. भजन संहिता 43 वचन 4, प्रभु में आनंदित हो जाओ। Finally, Philippians 4:4-8, Nehemiah chapter 8 verse 10, joy of the Lord gives us strength. फिलिपियो अध्याय 4:4 से 8, नेहमिया अध्याय 8 वचन 10, परमेश्वर का आनंद Jesus हमारा बल rejoiced है। in the Holy Spirit, Luke chapter 10, 20 and 21. लूका अध्याय 10 वचन 20 और 21 कहता है कि पवित्र आत्मा में आनंदित हो जाओ।
We can also rejoice in the Holy Spirit, not in only at just television or this show, that show, entertainment. Nowadays people are saying. But in those days there was no television, there was no social media, there was no WhatsApp, Facebook, nothing is available. But people rejoiced in the Holy Spirit, people rejoiced in God. हम पवित्र आत्मा में आनंदित हो सकते हैं। इन दिनों में लोग व्हाट्सएप, टेलीविजन वगैरह सब देखते हैं, उससे आनंदित होते, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन लोग पवित्र आत्मा में आनंदित होते थे। They rejoiced. उन्होंने आनंद They मनाया। had families. उनका परिवार They था, had children. उनके बच्चे थे, They lived together, unity. वो एक साथ एकता में रहे, Successfully they lived. बड़ी सफलता में वो जीते रहे। No proper flooring, no plumbing system. There is no electricity. There is no facilities on this earth. But in those days in their houses, but still they lived happily. उन दिनों में उनके घर में ना बिजली थी, ना अच्छी फर्श थी, ना अच्छी प्लम्बिंग थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुशी से रहते थे। Why? क्यों? Because they were rejoicing in God. क्योंकि वो परमेश्वर में आनंदित थे। You can also rejoice in God, my brother. मेरे भाइयों, आप प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। If you abide in Christ, you will be always joyful. अगर आप मसीह में बने रहेंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे। The next one, अगली बात, love. प्रेम। John 15:12. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 12। Love others, support others, help others. दूसरों की मदद करें, दूसरों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें। नीति वचन 17:9। जो एक दूसरे के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। So change our attitude. You can change your attitude. If you don't change it, your attitude will become your character. आप अपनी मनोदशा को बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपकी मनोदशा आपका चरित्र बनेगी। Character can damage our life. ये चरित्र हमारे जीवन में नुकसान ला सकता है। Before your character gets damaged, इसका ask पहले the कि आपका Holy Spirit चरित्र of God बिगड़ to जाए, change our attitude. अपनी मनोदशा को बदल दीजिए। आप पवित्र आत्मा की मदद से अपनी मनोदशा बदल। The fifth one, और फिर पांचवा है, we become Jesus friends. हम यीशु के मित्र हो जाते हैं। Jesus will call us, you are my friends. John chapter 15 verse 14. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 14 कहता है, यीशु ने हमें मित्र कहा है। He'll keep walking with us. वो हमारे साथ में चलते रहता In है। the teenage when I got saved, जब मैंने किशोर अवस्था में उद्धार पाया and my father used to check me, used to test me. और मेरे पिताजी हमेशा कई बार मुझे जांचा करते थे, He used to see all my diaries, what I am writing, what I am doing in night time. और रात के समय मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं, क्या लिखता हूँ, इस तरह से डायरी में वो देखते Because थे। once God changed me, my love turned into the Holy Bible. और जब एक बार प्रभु ने मुझे बदल दिया तो मेरा प्रेम पवित्र बाइबल के लिए बढ़ गया। Psalms 119 was very, very famous psalm for me. भजन संहिता 119 तो मेरे लिए बहुत ही विख्यात ऐसा भजन था। Proverbs 3 was really a wonderful Proverbs for my life. नीति वचन 3 तो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा नीति वचन रहा है। Proverbs 22, it really inspired me. नीति वचन 22 ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। James chapter 1:5 inspired my life. याकूब अध्याय 1 वचन 5 ने मेरे जीवन को प्रोत्साहित किया। You know, Psalm 91, it really gave me strength. भजन संहिता 91 ने सच में मुझे बल दिया। Psalm 23, it gave me courage. भजन संहिता 23 ने मुझे साहस दिया। And Psalm 24 was 4 to 8. भजन संहिता 24 वचन 4 से Psalms 8, 119 was 9, Psalms 119 was 37. भजन संहिता 119 वचन 9, भजन संहिता These words 119 spoke to 33। me. इन वचनों ने मुझसे बातें की। You know, the Psalm 119 was 99 and 100 says, if you read God's word, you will get knowledge better than your teachers. भजन संहिता 119 वचन 99 और 100 कहता है कि अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप ज्ञान पाएंगे, अपने शिक्षकों से भी बेहतर हो That जाएंगे। word really touched my life. इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। I tasted what is the friendship with Jesus. Taste and see the Lord is good. मैंने यीशु के साथ की मित्रता का स्वाद लिया। आप प्रभु को चख कर देखिए, वो भला है। So next word, when you abide in Christ, what is happening? God is glorified when you abide in Christ. अगली बात, जब आप मसीह यीशु में होते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। John 15:8. यूहन्ना 15:8। Bible says God will glorify through you. बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएगा। Lord, I want to abide in you. If you want to say that, then lift up your hand if you take a decision. अगर आप निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तुझ में बने रहना चाहता हूं तो अपने हाथ उठाइए और निर्णय लीजिए। Let me continue to be joyful in Christ. प्रभु मैं निरंतर यीशु मसीह में आनंदित हो Let me जाऊं। abide in Christ, Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहूं। Wherever I go, मैं जहां भी जाऊं, whatever I do, मैं जो कुछ भी let me be करूं, always joyful. मैं हमेशा आनंदित रहूं। Let me always hopeful. मैं हमेशा आशा से भरा रहूं। Make me a faithful. मुझे विश्वास योग्य बना। Lord, touch me, Father. प्रभु पिता मुझे छू ले। Let me bring joy wherever I go. I will spread joy everywhere. मैं जहां भी जाऊं वहां पर आनंद फैलाने वाला व्यक्ति बनूं। Holy Spirit, come into my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। Fill me, Holy मुझे Spirit. भर दे पवित्र आत्मा। Fill my children with the joy. मेरे बच्चों को आनंद से भर दे। Fill
Fill husband, wife, everyone with the joy of the Spirit of the Lord. पति और पत्नी को सभी को पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे मेरे Let प्रभु। them have joy of the Lord. ये प्रभु के आनंद को प्राप्त कर ले। No depression go away. सारी निराशा चली जाए, Disappointment go away. सारा हताश होना चला जाए, All discouragement leave them right now. सारी निराशा भी इसी समय ने छोड़ दे No more disappointment. और कोई निराशा नहीं रहेगी, No more depression in Jesus' name. डिप्रेशन नहीं रहेगा यीशु के नाम में। Only joyful in Christ. बस यीशु में केवल ये आनंद Joyful मनाएंगे, in the Word of God. प्रभु के वचन में रहेंगे। When we speak, when we move, when we do things, help us to be joyful. प्रभु जो कुछ भी हम कहते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, उसमें आनंदित होने में मदद कर प्रभु। Teach us, Father God. पिता परमेश्वर जी, Anoint us, Father God. हमें अभिषेक दे, Transform our lives, Lord. हमारे जीवन को बदल दे। Lord, we want to abide in Christ. प्रभु हम मसीह में बने रहना चाहते हैं Fruitful in love. और प्रेम में फलवंत होना Help चाहते us हैं। to be fruitful in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होना चाहते हैं। Bless every one of us, Father. हम में से हर एक को आशीष दे पिता। Thank you for your grace and mercy. अपना अनुग्रह, अपनी दया उंडेल। Teach us and lead us and strengthen us in Jesus' name. हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर यीशु के नाम में। Let thy will be done in Jesus' mighty name. तेरी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। जो मुन्नी पिछले 10 साल से इनको हेडेक था, सर में दर्द था, शी कुड नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। मेरे को ये हाथ बहुत तकलीफ दे रहा था। 2 घंटे से मैं बहुत तड़प रहा था। मैं सुबह से ऐसा तड़प रहा हूँ, मछली तड़पे वैसा तड़प रहा हूँ। अभी मैं जरा फ्री हूँ, बहुत अच्छा है। अभी मैं उठा सकता हूँ, आराम से उठा सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया। मेरा नाम इप्सिता दास है। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं मेरा नी पेन एंड चेस्ट पेन इसके लिए आई थी। बॉडी पेन हो रहा था, जॉइंट्स पेन में आर्थराइटिस पेशेंट हूँ। टिफिन पॉल मेरे लिए जो प्रेयर किए उससे मुझे अच्छा फीलिंग आया है और ब्रीथिंग में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। यहाँ तक जब तक थी तब तक बहुत था, तो मैं बहुत प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे चंगा कर दीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगी, आप जो बोलोगे वही करूँगा, आपके साथ जीऊँगी, आपके बात ही मैं सुनूंगी। मैंने वैसे प्रार्थना किया था। हाँ, अभी सुनाई दिया। 1 2 3 5 10। हाँ, अभी सुनाई दिया। 2 साल हो गया, अभी भी सुनाई दिया।